Hello everyone, myself Raju Singh and I am going to today solve two basic problems of a PRMO question asked in 2019. The first problem is find the largest value of e to the power b such that positive integers a and b is greater than 1 satisfy a to the power b into b to the power a plus a to the power b plus b to the power a is equals to 5329. 5329. Let's start to solve. First of all, it is given that a to the power b into b to the power a plus a to the power b plus b to the power a, that is equals to 5329. For just a simplification and to factorize this left hand side into two factors, I want to add one both side. After adding one, a to the power b to the power a plus a to the power b plus b to the power a plus 1, that is equals to 5330. If you add both sides, this will be the 5330. Now, if you take common from this two, a to the power b, we get b to the power a plus 1, and I take it common from this one, 1 b to the power a plus 1, that is equals to 5330. Final is a to the power b plus 1 into b to the power a plus 1. This is the two factor of this number. What we have to do on last? The last is to factorize 5330 into a part. If you factorize, first we get 2 after 5, after 13 and after 41. You can try with yourself. When you get this 4 factor, write down this 4 factor into, to cancel it, 2 into 5 into 13 into 41. अब इन द लास्ट मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास मिल जाएगा a to the power b plus 1 into b to the power a plus 1, that is equals to 65 into 5, 13 5 just 65 and 42 in 41 into 2, that is 82, right? हम थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, सुनिएगा, जब भी आपको पीआरएमओ में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा एक क्वेश्चन देता है जिसमें टू एक इक्वेशन हो बट वेरिएबल दो हो और वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज हिट एंड ट्रायल होता है. आइदर a to the power b plus 1 is equals to 82 और this one is equals to 82. तो इसमें से कोई एक लेंगे और मान लीजिए पहला वाला मैंने लिया, फिर दूसरे वाले को सेटिस्फाई करूंगा. इफ इट सेटिस्फाइड देन द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. तो a to the power b की वैल्यू निकल जाएगी, तो a और b भी हमें निकल जाएगा. लेट्स ट्राई. जब हम ऐसा करते हैं, लेट्स, तो या तो a to the power b plus 1 is equals to 82. अगर ऐसा होगा a to the power b is equals to 81. अच्छा, ये कब पॉसिबल है 81? व्हेन इट इज पॉसिबल a to the power b, दो अलग अलग नंबर भी होने चाहिए हमारे पास बेस में. तो ये कब पॉसिबल है? अगर मैं कह दूं 3 to the power 4 तो 81 होता है 3 to the power 4 वेयर a. अब ये कंडीशन दूसरे वाले को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए. इट मींस b to the power a plus 1 is equals to 65. इट मींस b to the power a is equals to 64. और जब ऐसा है, यानी 64 कैन बी रिटन एज b to the power a equals to 4 to the power 3. तो यहां से भी मेरे पास a की वैल्यू जो है 3i और b की वैल्यू 4, और दूसरी वाले इक्वेशन से भी a b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3. इट मींस आवर आंसर इज परफेक्टली क्लियर. इट मींस a is equals to, what is the value of a? That is equals to 3 and b is equals to 4. हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था find the largest value of a to the power b. Find the largest value of a to the power b. The largest value of a to the power b वो क्या था जी? 81 ही था a to the power b की लार्जेस्ट वैल्यू.
Therefore, the final answer is 81. Our answer is 81. And the next question is proceeding the next question. हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. This is also a question which is asked in PRMO in 2019. ये क्वेश्चन में क्या है? The center of a circle passing through the midpoints of the sides of an isosceles triangle. जो सेंटर ऑफ सर्कल है, एक सर्कल है, उसके सेंटर्स जो है कहां से पास कर रहे हैं? मिड पॉइंट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC. ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट से, दो साइड के मिड पॉइंट से ऑन अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ABC. ABC एक सर्कम सर्कल भी ट्रायंगल है. अब सर्कम सर्कल का कई बार मैंने बता चुका हूं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट. इफ द लार्जर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, अगर ABC का जो सबसे बड़ा एंगल है दैट इज अल्फा एंड द स्मॉलर वन इज बीटा, वी हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा एंड द एम इज द डिफरेंस ऑफ लार्जर वन एंड द स्मॉलर. लेट स्टार्ट. सबसे पहली बात, हमने सर्कम सर्कल आपको बताया. व्हाट इज सर्कम सर्कल? व्हेन अ ट्रायंगल all the sides, all the vertices of a triangle lies on the circle, hence it is a circumcircle. या in the sense कह सकते हैं कि कोई भी एक सर्कल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है और एक यूनिक सर्कल ही पास कर सकता है, तो उसे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं. उस ट्रायंगल को जो ड्रॉ करेंगे दैट इज सर्कम सर्कल होगा. ठीक है जी. हमें हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन? हमारे पास गिवन में है कि ये वाला जो D पॉइंट है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ AB and this is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. अच्छा जी. अब हमें ये भी बात पता है कि ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये एक सर्कल का पार्ट है और कहीं ना कहीं ये भी एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. कहीं ना कहीं ये भी एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. उससे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए हमने फिगर में उसको लिया भी नहीं, क्योंकि हमें इतने ही पार्ट से जो है काम हमारा हो जाएगा. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे इन द लास्ट मोमेंट देखिए, ये एक रेडियस है इस सर्कल का, ये भी रेडियस है, तो ये 2r हो गया. ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है. अब हमें रेडियस कैसे पता चला? क्योंकि ए एक सेंटर है, ये जो सर्कल है इसका ए सेंटर है. अब ये बात कैसे पता चला? तो इस बात को पता करने के लिए देखिए, सिंपली आप लोगों ने पढ़ा होगा टैंजेंट. क्या होता है जी? टैंजेंट. और टैंजेंट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर है तो कहां से? वो सेंटर से आता है. वो रेडियस ही टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, दूसरा कोई नहीं परपेंडिकुलर होता. दूसरा कुछ परपेंडिकुलर नहीं होता है, बिकॉज परपेंडिकुलर मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द दिस लाइन. और ये पॉइंट के बीच में, ये जो कोई भी ओ पॉइंट है सेंटर और ये लाइन एल है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सबसे कम है, वो रेडियस ही है. तो इसीलिए परपेंडिकुलर होगा. दो चीजों के बीच में जो सबसे छोटा सा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और वो ऑलवेज भी है परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर होगा. और जब ऐसा है, इट मींस A इज अ सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल जो ऊपर से इन दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, दिस मींस दिस आल्सो अ रेडियस. इसका मतलब ये हुआ कि AC जो है वो 2r है. तो A और F, ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन इज पॉइंट F, AF इज इक्वल्स टू R. अच्छे, ट्रिग्नोमेट्री सबको पता होना चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ सम रूल. साइन थीटा, अगर कोई साइन थीटा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन माय हाइपोटेन्यूज. बिकॉज मे बी ये छोटे बच्चे नहीं समझ पाए, बाकी सारे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है. tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इन दोनों को डिवाइड करने पर ये होता है. अब यहाँ पर अगर मेरे को एंगल ए चाहिए, दिस वन एंगल है, और इसी तरह से कुछ वैल्यू निकालते हैं. जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 30 और कॉस 60, दैट इज 1/2, वो भी होता है 1/2. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई भी इन दोनों में से यूज कर सकता हूँ, वॉट एवर आई वांट. तो मैं ये वाला एंगल यूज करना चाहता हूँ, एंगल FAC. इसके ऊपर जब मैं लगाऊंगा एंगल, तो साइन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा ले लेता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस ले लेते हैं हम, बेस हमें निकालना है तो कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए और एफ, बेस इज ए एफ, हाइपोटेन्यूज इज ए एंड सी। ये हमारा आर है और ये हमारा 2r है, r से r कट जाएगा, इट मींस cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, इट मींस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी मैंने बताया था cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 होता है, समझ में आ रहा है? इस चीज का यूज करके हमने, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री, कौन सा, ये थीटा मेरे पास आया 60 डिग्री, इट मींस दिस आल्सो 60 डिग्री। अब एक एंगल ये 120 डिग्री होगा और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब बचे हुए तो एंगल, ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा 30, दिस वन इज 30, इट मीन जो अल्फा था, जो सबसे बड़ा एंगल था, दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, एंड द स्मॉलर वन इज बीटा इज 30 डिग्री। डिफरेंस ऑफ दिस टू मींस 120 डिग्री minus 30 डिग्री, that is equals to 90 degree. Therefore our final answer is 90 degree. Thank you for watching this video so much, and don't forget to subscribe my channel and share it. आपको ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड वीडियो को वॉच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।